Morning everyone. I welcome you all to this post-budget press conference of the Union Finance Minister and her budget team. As you know, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ji, presented the general budget of 2020-21 a short while ago. I extend a warm welcome to you, ma'am, to this press conference. I also welcome the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Thakur ji, Finance Secretary Shri Debashish Panda, and Revenue Secretary Shri Ajay Bhushan Pandey. Today's press conference will go like this. First, the Finance Secretary will make his opening remark, which will be followed by question and answer session. While asking questions, please identify yourself and also be very brief while asking your questions. Please confine yourself to 2 questions each so we can cover as many journalists as possible. I would like to request you all to keep your phones on silent mode. Over to the Finance Secretary, please. So, thank you all for being present here for this conference. I take this as an opportunity to not only answer your questions, but to also elaborate on some certain points relating to the budget 2020. So, the whole union budget is structured on the overall theme of ease of living. We have emphasized on boosting the income of the people and improving their purchasing power through an overall development in the country, in the economy, which includes rural and urban initiatives as well. We have proposed a new and simplified tax regime in order to provide relief to the individual taxpayers, wherein the tax rates are significantly reduced for the individual taxpayers who forego certain deductions and exemptions. We have proposed to remove dividend distribution tax and have adopted the classical system of dividend taxation. We have extensively focused on the health and education sector, proposing 20,000 impaneled hospitals under the PM Jan Arogya Yojana. Now you may proceed with the question. Now we are starting off with the question answer session. First up is Financial Express. Good morning, ma'am. My name is Palak Koti, and my first question to Finance Minister is that there is a financial bill that Indians who are not paying taxes in abroad and in India. How will this work? Does this mean people working in foreign countries have to pay taxation at global level? Yes, we have done this for the global level revenue because the people who are living abroad or in India are not paying taxes, the non-residents. So it is beneficial for the country and it can be more betterly told by our Revenue Secretary. See, many of the so-called NRIs are not the permanent resident of those countries, and as well as they are not paying tax here. So basically we have made this to come to make a radar and come all those in this radar, so they'll pay tax according to their expenditures. And the next question is to the banking sector. In the economic survey, it was mentioned that there are top 100 global banks. By looking at the current scenario of a country, we should have 8 such banks by 2025. Do you think this is possible? Yes, this is definitely possible because emergence is giving the benefit because it acts as a window. When there is a single window, the people will find it ease, and we are with the theme of ease of living. So it is for that only. Thank you. Next up is Navbharat Times. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम यथार्थ मल्होत्रा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो टैक्स पेयर चार्टर है, तो टैक्स डिपार्टमेंट इससे क्या नया लेके आना चाहता है बजट में? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च करने की बात कही है, उसकी डिटेल्स क्या है, उससे कितना कलेक्शन हो पाएगा और उसका टारगेट क्या है? देखिए, जब हम टैक्स पे चार्टर की बात करते हैं तो वो इसीलिए लाया गया है जो लोग टैक्स नहीं दे पाए हैं, जिनका टैक्स पेंडिंग है, उनको एक हरासमेंट से सिक्योर करने के लिए ये एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि उन्हें एक हेल्प प्रोवाइड हो। और इसके बारे में आपको रेवेन्यू सेक्रेटरी और अच्छे से बताएंगे।
इससे पहले हमारी विश्वास स्कीम आई थी जिसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर किए थे, तो करीबन 2 लाख हमने टैक्स लिटिगेशंस कवर की थी और काफी ज्यादा रेवेन्यू उससे हमें आया था। और लोगों की जिन कंपनीज के केसेस फंसे हुए थे उन्हें काफी हेल्प हुई थी कि उन्हें केवल प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ा था, डिस्प्यूटेड अमाउंट देना पड़ा था। और वैसे ही अब हम डायरेक्ट टैक्सेस के लिए आए हैं विवाद से विश्वास स्कीम लेके कि 31 मार्च से पहले अगर कोई भी अपना डिस्प्यूटेड टैक्स जो है, कोई भी जिस कंपनी का केस फंसा हुआ है कहीं भी ट्रिब्यूनल में या सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो टैक्स 31 मार्च से पहले देता है तो उसे केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट देना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा मानना है करीबन 4 लाख केसेस हैं ऐसे जो डिस्प्यूटेड हैं, तो इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आएगा और एक सिस्टम में सुधार आएगा। थैंक यू। Next is CNBC. Good morning, ma'am. I'm Isna, and my question to you is why hasn't there been any comment made on financing and promoting defense sector for the first time in an Indian budget in the history? Okay, so it's not like that कि डिफेंस हमने डिफेंस सेक्टर में कोई ध्यान नहीं दिया है। ये है कि उस पे भी काम चल रहा है। Plans and policies are coming and they will be definitely told to you। और रामजी इस बारे में और अच्छे से बताएंगे। We have allocated 3.37 lakh crore in budget this year for defense, and we have focused more on rural development in this budget. That's why. So my next question will be there has been 40% taxes imposed on cigarettes, but there hasn't any taxes imposed on BD manufacturing, and BD manufacturing is almost compared to cotton industry. So yes, why hasn't there been any taxes imposed on BD? There is no proper organization or institution which are making BD or packet something. Homemade BDs are basically prepared by rural areas. We look into this matter and will We will definitely we will get back. definitely tell you. Okay. Next up is NDTV. नमस्कार, मेरा नाम छवि गोस्वामी है और मेरा सवाल ये है कि 2017-18 में सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें सियाचिन जैसे तैनात सैनिकों के पास मूलभूत सामान की भारी कमी थी। तो इस साल सरकार डीएफएस बजट का कितना हिस्सा दुर्गम क्षेत्र के तैनात सैनिकों पर खर्च करने वाली है? देखिए, इस साल का बजट पूरा इसी तरह है कि डिफेंस जो भी सेक्टर में लोग आते हैं या जो भी आर्मी पीपल हैं हमारे, उनको एक अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। सारे सूट्स उनके लिए प्रॉपर्ली बनवाए गए हैं वहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखते हुए। और इसके बारे में और आपको अनुराग जी बताएंगे। As I mentioned earlier, we have allocated 3.37 lakh crore in this defense budget, and I want to tell you there is no standard scaling of equipment at that level. The soldiers are sitting up there in 12,000 meter, more than 12,000 meter. The government has authorized a special scale of ration to all the troops who are above 12,000 feet. मैं कहना चाहूंगी, मेरा सवाल हिंदी में है तो आप कृपया हिंदी में उत्तर दें। Definitely. सरकार ने काफी कोशिश की है वहाँ पे सामान पहुँचाने के लिए। हर सोल्जर के क्लोथिंग में हमने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और उनके इक्विपमेंट्स में 1.5 लाख से ज्यादा कोशिश की है उन्हें देने की। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है क्योंकि वो बहुत हार्श कंडीशन है, तो कई बार सामान पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाता है, बट लुक इनटू इट। मेरा दूसरा सवाल ये है कि देश में लगभग औसतन 35 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या इस साल युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद रहेगी? जी हाँ, आप हमारा बजट देखिए, बिल्कुल रोजगार मिलेगी क्योंकि हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी जो है हमने इंक्रीज किया है। हमने 3,000 करोड़ स्पेशली इसीलिए रखा है कि स्किल पे जो है फोकस किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हमारी कंट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसी चीज के लिए। और इससे ज्यादा आपको देवाशीष पांडा बताएंगे। जी, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हमने एस्टिमेट करा है कि मार्च 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में 2.62 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे।
जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में 22,000 जॉब्स होंगी, होम मिनिस्ट्री में 8,000 जॉब्स, कल्चरल मिनिस्ट्री में 3,000, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 3,000, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 3,000 और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में 2,500 जॉब्स। तो बिलीव कि हालात सुधरेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। धन्यवाद। Next is Z News. नमस्ते, मेरा नाम मानवी श्रीवास्तवा है। मेरा सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से है। मेरा सवाल ये है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो संसद में इंग्लिश में क्यों प्रेजेंट किया जाता है हमारा बजट? देखिए, हमारी भाषा हिंदी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा बजट सिर्फ इंडिया तक कन्फाइन नहीं है। हमारा बजट बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे भी जाता है, बाहर की कंट्रीज में हमारे बजट को देखती हैं, पूरा एनालिसिस होता है हमारे बजट का, तो हम सिर्फ हिंदी में नहीं दे सकते। इससे हमारी शेयर मार्केट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारा इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर कंट्री में अंडरस्टूड है और हर कंट्री में यूज होती है, इसीलिए हमारा मेन पर्पस यही है। मेरा अगला सवाल ये है कि भारतीय बजट को हमेशा घाटे का बजट क्यों ही बनाया जाता है? देखिए, घाटे का बजट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है और रेवेन्यू भी है, लेकिन उसके बीच में हम एक गैप रखते हैं जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। वो बेनिफिट्स के लिए ही होता है ताकि जब जरूरत पड़े तो हम अपनी कंट्री के लोगों को उस चीज से हेल्प कर पाए। तो हमारा बजट घाटे का बजट नहीं है, डेफिनेटली। Next up we have EBP. My name is अमित कुमार माथुर और मेरा पहला सवाल है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से। आपकी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, क्या वो यह कर पाएगी? देखिए, अब लक्ष्य बना है तो वो पूरा तो हो गई और कोशिश भी यही है कि वो जल्द से जल्द हम अच्छी तरह पूरा कर, जैसे हमने वादा किया है। और इसके बारे में अनुराग जी आपको बताते हैं। एग्रीकल्चर इस बार हमने 2.83 लाख करोड़ का बजट रखा है। इसमें हमने स्पेशली फार्मर्स को सोलर पंप प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू वो अपनी फर्दर इनकम भी बढ़ा सकते हैं। और हमने एग्री क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी जो होती है वो भी हमने 15 लाख कर दिया है। पिछले बार 11 लाख करोड़ थी, वो भी हमने बढ़ा दिया है, जो फर्दर फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि आपने बताया सोलर पावर, इस बजट में कुसुम सोलर पावर जो स्कीम है उसको थोड़ा समझाएं और मुझे ये बताएं कि चाइना की मार्केट सोलर पैनल मैन्युफैक्चर में ज़्यादा डोमिनेंट है, इंडिया इसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कैसे देखता है? अजय भूषण देखिए, पहले हम असेंबल इन इंडिया का मोटो लेके चलते थे, अब हम मेक इन इंडिया का मोटो लेके चल रहे हैं। तो सोलर एनर्जी पे जरूर काम हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना से अब ज्यादा हमने लेना भी बंद कर दिया है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। इस बजट में ऑटो सेक्टर अनुपस्थित है। वर्ष 2019 में इस पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑटो सेक्टर का जैसे है, इस बार हमने रूरल सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो उससे क्या होगा कि जो एग्री बेस्ड लोकोमोटिव्स जो है, जैसे कि किसानों को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए और जितने भी व्हीकल्स रूरल सेक्टर में लिए जाएंगे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि छोटी जगह से ही शुरुआत है आगे बढ़ने की, तो जरूर ग्रोथ में उसमें होगा। एनबीएफसीज को भी हमने इस बार एड्रेस किया है, तो फंड्स की कमी नहीं होगी और इसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट अप इज आज तक। नमस्कार, मेरा नाम विशाखा है। मेरा क्वेश्चन अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से है। तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स है, तो इस वन नेशन वन टैक्स के जमाने में वन नेशन टू टैक्स स्लैब जो आया है, क्या वो जनता को कंफ्यूज नहीं करेगा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। जब हम टैक्स स्लैब्स इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है टैक्सेस का। पहले जनता ये कहती है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा टैक्स है, लेकिन अब टैक्सेस को रिड्यूस किया गया उनकी ही बेनिफिट्स के लिए, ताकि सैलरीज में ज्यादा से ज्यादा डिविजन कर दिया गया है। क्योंकि से जो लोग 5 लाख के बीच में कमाते थे उनको भी टैक्स भरना पड़ता था और जो 5 से 7 के बीच में कमाते थे उन्हें भी भरना पड़ता था। लेकिन इस बार ये एक रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए, तो इसीलिए हमारे टैक्स स्लैब्स इंक्रीज किए गए हैं। ओके, और हमारा इससे आगे आपको बताएंगे रेवेन्यू मिनिस्टर। देखिए, ये टैक्स स्लैब
सिंप्लीफिकेशन के लिए लाया गया है। और ऐसा ही नहीं है कि यूएस में 5 टैक्स स्लैब्स है और चाइना में 7 टैक्स स्लैब्स है। एक सिंप्लीफिकेशन लाता है कि अगर कोई किसी की आय बढ़ती है तो एक जो जंप आता है उसमें ज्यादा इंक्रीज ना हो टैक्स में, और यही है बस। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे नई टैक्स स्लैब है जिसमें बचत करने पर इनकम टैक्स की तरफ से एक छूट मिलती थी, पर अब वो खत्म कर दी गई है। तो उससे क्या सरकार ये मतलब सरकार की तरफ से ये संकेत है कि अगर जनता बचत कम करे और खर्चा ज्यादा करे? देखिए कि आप इससे समझिए कि नया टैक्स स्लैब है, इसमें हमारी अपनी मर्जी है कि ओल्ड टैक्स स्लैब में हमें एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं और नए टैक्स स्लैब में हमें एग्जेम्पशंस नहीं मिल रहे हैं। तो जब नए टैक्स स्लैब में एग्जेम्पशन नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास सेविंग्स ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सेविंग्स ज्यादा है तो हम ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे और ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। Next we have CNN. Good morning, my name is Shavi Mathur and my question is to the State Finance Minister. The experts have said that they will revise the auto sector, but in the budget we cannot see any aspect of it. So do you think about it as an unimportant aspect of the budget? I think you have already covered. And so the BS6 model will also overburden the auto sector. So the government will give any relief to the people? We have introduced BS6 because it is more efficient. It is 25% more cleaner than the previous engine, and it also reduces nitrogen oxide, and which contribute in reducing air pollution. So we focused here on sustainable development, and that's why we have introduced BS6. But we will look further into it. And my second question is that the experts have also said that the demand is a huge problem, and that money needs to be given to common people to increase the consumption and demand. So will the budget in 2020 focus on that also? That's why we have introduced the new tax regime. We have created new tax slabs so that people could save more. By saving more, they will spend more. Next up we have PTI. Good morning everyone, my name is Anshul and my question is to Finance Minister. What is the reason behind launching IPO of LIC as there are more profitable PSU companies in which it is outlined? Okay, so when we talk about IPO, it's the public offerings. We are doing this or taking this step because In order to increase the flow of money and the money in the hand of people. The main focus is to give money in the hands of the people so that they can make maximum investments and there can be a good flow of money in the market which will lead to greater growth. And this can be more answered by Debashish. So as the finance minister said, this was a much needed step. This was a much needed step to open the initial public offering for the LIC. As we can't just rely on the tax to collect revenue, and we have been facing lack of revenues because of poor tax collections. So yes, initial public offering was much needed. And I think the public offering of LIC can make a boom in a stock exchange market, as it will definitely cross the 9 lakh crore cap of the prestigious companies. And LIC has more stakes in Larsen and Turbo and Bharat Heavy Electricals, so it will give us a great revenue and it would be beneficial for us. My next question is why the government is silent on the NPA of LIC which will be doubled as compared to last year which was 6%. I think LIC has come under SEBI now. So it would definitely make some rules and regulate it accordingly. So there would be no issue of NPA increasing. Thank you. Next up is Scroll. Good morning everyone. My question is I'm Sarvika Vasad. My question is from Finance Minister. With 2021 budget, it is optional for the people to pay taxes according to the new tax regime. But the question here is why would they pay the earlier tax regime since the new regime is benefiting them with low tax percentage? See, when we say that the
taxes has not been fully collected, so they are pending. So first we need to collect them, and then we can go up for the new budget schemes which have been given on taxes. And my next question is, how does new tax regime will benefit our country economically, because people now will be paying nearly half the percentage of taxes as they were paying earlier. See, this tax regime would basically help the people by basically the money would come in the people's hand, so they can invest more, and the demand would increase for everything. So I think there would be a growth. A growth would start. In the end, we have the wire. नमस्कार, मेरा नाम श्री जायसवाल है। मेरा सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से है कि सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट में से 70,000 करोड़ की कटौती की है, जिसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों पर जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वहाँ कटौती की गई है तो कहीं बढ़त भी की गई है, और हमारा मेन फोकस इस बारी रूरल सेक्टर है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने कटौती कर दी है तो उससे हमारे रूरल सेक्टर पे कहीं फर्क पड़ेगा। वो वही कटौती हमने कहीं और यूज करी है ताकि वो और ज्यादा बेनिफिट दे सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते सालों में झारखंड में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो भूखे पेट कैसे बढ़ेगा इंडिया? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमारी पुष्टि में ऐसा कुछ सामने आया नहीं है कि यही रीजन रहा होगा उन लोगों की मौत का, और आगे हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके बारे में कुछ पता लगेगा तो जरूर। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बजट में रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र तक नहीं हुआ है, और रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीद थी इस बजट से, तो सरकार की क्या मंशा है इस बारे में? मैं बताना चाहूँगा कि इस बारी सॉवरेन वेल्थ फंड इसमें 100% एग्जेम्पशन दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रियल एस्टेट में। और उसके अलावा बताना चाहूँगा मैं आपको कि 1.5 लाख का रिडक्शन, मतलब 1.5 लाख का जो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को फायदा होता था जब लोग लोन लेते हैं, तो वो अभी तक है। और जो पुराने प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उसमें भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है रियल एस्टेट्स को, और ये कितना ही है अभी। Well, with this we come to an end of this conference. Thank you so much for joining. प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए शुरू करी है, और LIC की भी आप सरकार कुछ शेयर बेच रही है, तो आप निजीकरण की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार होगा? देखिए, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार का हमारी अपेक्षा है, क्योंकि हमने ये इसलिए ही किया था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हमारा बर्डन ना जाए और सब लोग साथ मिल बांट के एक अच्छा ग्रोथ दें। और आप, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी सरकार ने कहा था कि भारत 2030 तक सबसे ज़्यादा कामकाजी वाला क्षेत्र बनेगा, तो किस उसमें आप इसका लक्ष्य क्या रखा है? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में हमने इसीलिए एक स्पेशली एक एस्पेक्ट बनाया है जिसमें हमने स्किल इंडिया पे फोकस किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। थैंक यू। Hello ma'am, my name is Anurag and I am from Times Now. I want to ask that why government is imposing 5% TCS on foreign tour packages. देखिए, वो इसीलिए लगाया गया है ताकि जो एक टैक्स की हम कहते हैं ना टैक्स चोरी या टैक्स इवेजन हो है वो ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये चीज़ पे ध्यान दिया है। Okay ma'am. हम चाहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ का मौका मिले। पहले करीबन $180 पर मेट्रिक टन के हिसाब से मिलता था PTA, पर अब इसमें थोड़ी गिरावट आएगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। उन्होंने काफ़ी बजट बढ़ाया है पिछली बार से, और इस बार PPP के थ्रू हम काफ़ी इंस्टीट्यूशंस भी खोलेंगे हेल्थ सेक्टर में भी, और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में हमारा ज़्यादा फोकस होगा जिससे कि ग्राउंड लेवल तक हमारी सुविधा पहुंच सके। थैंक यू। हमारे जो उनके साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोगों का बहुत अच्छा एफर्ट्स है, और मुझे लगता है कि इस तरह की मॉक कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित करते हो तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड नाइस। पूरी
भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट और बहुत अच्छी तरीके से ये उन्होंने किया। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये हुई कि जो लोग पेपर देख के क्वेश्चन कर रहे थे वो जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो और अच्छा रहता। अदरवाइज आपको बहुत नॉलेज है बच्चों के बारे में, आप ऑलरेडी हमारा सेशन दे चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे सेशन मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लगा जो हमने मिस कर दिया है या जिसका आंसर हमने सही से नहीं दिया? नहीं, ज़्यादातर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कवर हुई थी। छोटी मोटी चीज़ें रह गई, वो तो वैसे भी बहुत ही प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंसेस में भी रह जाती हैं। जो चारों लोग बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर और उनके साथ पूरा जो स्टाफ था, सेक्रेटरी थे, स्टेट मिनिस्टर थे, सभी ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, जिससे पता लगता था कि वो बहुत तैयारी करके आए हैं और एक सवाल का जवाब एक से ज़्यादा लोगों ने भी दिया। छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे फिस्कल डेफिसिट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, वो सवाल पूछने के लेवल पे भी थी और वो बहुत माइनर चीज़ें हैं क्योंकि बजट वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो किसी के लिए भी समझना आसान नहीं है। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी बहुत सारी चीज़ों में चूक जाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट लेवल पे बजट को इतना थारोली पढ़ के और इतने सारे उसमें से सवाल बना के और पूछे गए सवाल और उतनी ही अच्छी तरीके से जवाब दिया गया, इट वॉज ए फैंटास्टिक शो। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एज सच नहीं है। डीयू का जो पुराना सिलेबस था, आज से 20 साल पहले मैं जब डीयू में पढ़ाता था तो वहाँ एक पूरा पेपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का था जिसमें मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लेकिन वो मॉक सीमित था सिर्फ इस लेवल तक कि स्टूडेंट्स उसको ऑर्गेनाइज करते थे, स्टूडेंट सवाल पूछते थे, लेकिन जो डिग्निटरी था, जो गेस्ट था, वो रियल होता था। तो जैसे उसमें हमने इस तरह के नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को 2000 में इन द ईयर 2000 उनको इनवाइट किया था टू टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड टेक अप द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो गेस्ट रियल होता था, यहाँ गेस्ट भी मतलब इमेजिनरी हो गया, बट द वे that was conducted by the finance minister, state minister and the other people, this means you people would have seen how the press conferences are conducted, how the post budget press conferences are conducted, because these are very very intricate things. So you have gone in depth into those intricacies and have actually implemented all that the way it should have been. Thank you, sir.